Everyone, I am back with another video that is linear equation in two variables. So let's start with it. So सबसे पहले समझते हैं what is linear equation. Linear मतलब है one. Linear is related to one, and variable is a thing that varies. Therefore, we will be studying an equation in which we have two variables, in which there are two things which varies. Let the two variables be x and y. According to the linear, it means that power of x and y should be 1. मतलब क्या कि जो हमारी x जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो. और देखो, अगर आप सोचो कि ऐसे कैसे कितने इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इनफाइनाइट, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या, जो कि हम टू वेरिएबल्स में इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखो, हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन मतलब x और y की पावर 1 हो, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है. देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अब नेक्स्ट देखो, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स 9. इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं. देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल्स टू 3. अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो अब आप सोचो कि x इज इक्वल्स टू 3 एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं. क्या मैं x इज इक्वल्स टू 3 को ऐसे लिख सकती हूँ, y मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3? Yes, I can write, because anything multiplied by 0 is 0. तो इसका मतलब yes, of course it is a linear equation. It is a linear equation, but in this case the coefficient of y is 0. But still it is a linear equation because it can be termed in two variables. Next, now I'll be coming. I hope this is clear. X is equals to 3. This is a very nice example and many times asked in exams. So be careful with this. Now next is y is equals to 2x plus 1. X and y are having power 1 and we have only two variables. So yes, this is a linear equation. Very clear. Now this x by y is equals to 1. First of all, it might think that it is not a linear equation. It is a linear equation. Just take it here. X is equals to y. Or you can write x minus y is equals to 0. So yes, this is a linear equation because there are two variables and the power of each variable is 1. Now see, I have x plus y plus z is equals to 9. X power is 1, y power is 1, z power is 1. But it is a linear equation, but here we have the three variables. So this is a linear equation in three variables. So therefore it is not a linear equation in two variables. I hope you have understood these examples. Now let's talk about lines. See, we have two lines, means these two are the linear equation in two variables. First one is a1x plus b1y plus c1 equals 0, and second one is this. So what can happen to two lines? See, if this is the coordinate plane, what can happen to two lines? See, it could be like first line is going like this, second line may intersect this. So क्या हो सकता है, या तो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और the second case could be this is the first line and this is the second line. They are parallel, they will never intersect. Or a third case, let's take one more case. Third case could be like this is a line and the other line overlaps this line and the other line overlaps this line. So there are only three cases कि लाइन में क्या हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड कर सकते हैं. So now let's discuss some of the examples to clarify your concept. See, Meena has twice as apples as Ajay. तो मीना के एप्पल्स को तुम ले लो x, अजय के एप्पल को ले लो y. उन्होंने कहा मीना हैज ट्वाइस एज एप्पल्स एज अजय, मतलब मीना के पास 2 times of अजय's एप्पल है. I hope this is a very pretty simple question and you are clear with this.
So next question, my age is 3 less than age of my elder sister. Let my age be x, one variable, my elder sister's age be y. My age is 3 less than age of my elder. Sorry guys, here it should be older or elder. Okay, fine, let it be. So my age is 3 less than, that means x is equals to y minus 3. 3 less than the age of y. I hope this is clear. Let's proceed to the last question. That is, I have total of chocolates and candies equals to 98. Let the chocolates be x and the candies be y. Therefore, what it is saying that x plus y is equals to 19. I hope this is clear. अब मैं फटाफट आपको ना ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं उसका भी एक बार बता देती हूँ. 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले ना हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ. हमें एक बॉक्स बनाना है. ये हर जगह हर टीचर यही करवाते हैं मोस्टली, बट दिस इज द बेस्ट थिंग. सबसे पहले देखो, x को 0 पुट कर दो. x को 0 पुट किया तो हमारे पास देखो क्या आया, 2 टाइम्स 0 माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 9. नेक्स्ट वाले में पता क्या करो, y को 0 पुट कर दो. पुट y इज इक्वल्स टू 0. 2 टाइम x माइनस 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9/2. माइनस ऑफ 9/2. ऐसी एक और कोई वैल्यू ले लो तुम लोग. जैसे हम कह देते हैं y को 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. दैट इज 2x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4. देखो कोई भी 3-4 वैल्यूज लो, उसके बाद सिंपली ग्राफ हमारा जो 4 कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें तुम ये चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दो. x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 9, कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा. y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज माइनस 9/2, कहीं पॉइंट यहाँ पर आएगा. और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में x1 y इतना -4, ये कहीं पॉइंट हमारा आ जाएगा. तो देखो x -4 यहाँ कहीं, y1 यहाँ कहीं, तो ये जो लाइन पास करी है ये हमने प्लॉट कर ली लाइन. आई होप दिस इज प्रेटी मच क्लियर. अब ना इसमें एक और मस्त क्वेश्चन बनते हैं जो कि टॉपिक होता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो इनका हम हिंदी मतलब समझे तो कंसिस्टेंट मतलब जिनका सॉल्यूशन है, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और इनकंसिस्टेंट वो जिसका नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक इफ a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 b1 बाय a2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2. ठीक है, ये देखो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स होंगी. ये क्या होंगी, ये को इंसिडेंट लाइन्स. को इंसिडेंट लाइन्स क्या मतलब क्या है, हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, तो मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो देयरफॉर दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और कंसिस्टेंट है. देखो जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरे में ले लो 2x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो इनकी रेशो क्या आएगी, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. अगर हम देखें इन दोनों, ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग लाइंस हैं. तो मतलब जो ओवरलैप हो रही है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, देयरफॉर इनका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है. अब हमारे पास सेकंड केस आता है जहाँ पर हमारे पास होता है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. जब ये वाला केस आता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब ये दो है ना, ये ग्राफ पे ना ऐसे प्लॉट होती हैं. x प्लस वाई, इस वाले का प्लॉट होता है हमारा कुछ, मैं बताती हूँ, इस वाले का प्लॉट कुछ ऐसा होता है और इस वाले का प्लॉट कुछ ऐसा होता है. ये दोनों पैरेलल लाइंस है, कहीं पे नो इंटरसेक्शन हो जाता है तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि इसका नो सॉल्यूशन है, इसका हमारे पास नो सॉल्यूशन है, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. अब एक चीज और आती है, मैं आपको एक चीज यहीं पे फटाफट बताना चाहूंगी कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू
b1/b2 में हमारे पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, जो कि हम पूरे चैप्टर में सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें ये क्वेश्चंस ही मिलते हैं। मैं ना अब आपको बस क्विकली ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास मेथड्स हैं कुछ जिनसे हम निकाल सकते हैं आंसर। तो सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल हिंदी मतलब क्या है कि एक से निकालो और दूसरे में डाल दो। जैसे x + y = 9, x - y = 4। वी कैन टेक एनीथिंग। यहाँ से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू निकाली = 4 + y। इस x की वैल्यू को मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, मतलब एक से निकाला और दूसरे में डाल दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, x की बजाय मैं क्या डाल दूंगी, 4 + y। x की बजाय 4 + y = 9। तो y + y क्या हो गया, 2y = 5। तो y = 5/2। आई होप दिस इज क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल है, याद कर लो, एक से निकालो और दूसरे में डाल दो। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी को एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना, किसी एक चीज को बाहर निकाल देना। जैसे हमारे पास एक है x + y = 18 और दूसरी है x - y = 12। अब हम क्या कहेंगे, x जा y, x और y में से एक चीज को कर दो तुम एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या है, बाहर निकालना। मतलब कि देखो इनमें इनके कोफिशिएंट सेम है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 × x + y - y कैंसल्स, मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ y = 30। हमारे पास आ गया x = 15। अब y निकालने के लिए हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि x क्या है 15 + y = 18, देयरफॉर y = 3। I hope elimination and substitution is clear. Now just taking one more minute, I'll be explaining you an equation reducible to a pair of linear equation in two variables. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बताओ मुझे। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2y + 3x = 13xy। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें ये एक्स वाई टर्म आ रही है। हमने क्या देखा था कि एक्स वाई टर्म नहीं आ रही थी लीनियर इक्वेशन में। लेकिन अब हमसे पूछा जाता है क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। अगर हम 1/x को कुछ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, a ले लें, और 1/y को हम कोई वेरिएबल b ले लें, तो हम इसको एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि 2a + 3b = 13। ये एक लीनियर इक्वेशन है। समझो ये बात, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाना चाहते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब अगला देखो, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये तो लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो अब हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, अगर 1/√x को मैं a दे दूं और 1/√y को मैं b दे दूं, तो मैं लिख सकती हूँ 2a + 3b = 2। तो दिस इज, वी कैन मेक अ नॉन लीनियर इक्वेशन टू अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय द सब्स्टिट्यूशन। अब ये एक एग्जांपल है तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही है। देखो इसमें दोनों में तुम देखो 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y। तो मैं क्या करूँगी, सीधा ले लूँगी 1/3x + y = a, 1/3x - y = b। इतना लेने के बाद मैं सीधा बस लिखना ही चाहती हूँ a + b = 3/4 एंड a/2 - b/2 = -1/8। अब इनको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से। आई होप दिस चैप्टर ओवरव्यू इज क्लियर टू यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।